guys, all of you have heard about Gauss law in class 12 electrostatics. So let's deal with it in a beautiful way so we get through the topic very well. Okay, so let's starting with the Gauss theorem, Gauss law. First, for getting the approach towards the Gauss law, we need to know about the electric flux. What is electric flux actually? And when we think of electric flux, it's a very new term for us. For knowing the electric flux, we need to know about the electric lines of force. So let's start first with electric lines of force, then we will move to electric flux and then the Gauss theorem. So I hope you all are ready for it so we can understand the Gauss law in a better way. So yeah, this knowledge by me is acquired and I will just be sharing with you, and all the credit goes to my own teachers who taught me. And yes, it's like that. But I don't believe in lying and saying we are getting all the credit on me only because it's someone else's hard work too, right? Okay, so starting with the electric lines of force is called ELF in short we say. So what are these electric lines of force actually? These are the imaginary lines. We see when you're thinking about some kind of magnet or electric field, means when the electric charge is low, obviously you know some kind of field is created in that, right? The electric field is created. And if you're more comfortable with Hindi, I will also be using English language in with. ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आखिर होती क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स कोई एरिया है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उसे दिखाने के लिए जो लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। तो हमने इसको डिस्कवर किसने किया था इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, तो इसे डिस्कवर किया था फेराडे ने। अच्छा, फेराडे सुन के अगर आप पहले से पढ़े हो तो आपको ये पता होगा कि फेराडे क्या होता है। तो जब हम लोग बात करते हैं एक फेराडे की, तो वो एक कूलम की, तो वो कितना फेराडे की इक्वल, क्योंकि हमें ये पता है कि जो लार्जेस्ट चार्ज होता है वो फेराडे होता है। तो एक फेराडे जो होता है 96,500 कूलम की इक्वल होता है। ओके, उसकी हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होते हैं हमारी इमेजिनरी होते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रियल होता है, ठीक है। और हम जब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती है वो रिजल्टेंट के अलॉन्ग ड्रॉ की जाती है। मीन्स अगर हमारी कोई इलेक्ट्रिक यहाँ पे मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो हमारे एक इधर लगा रही है एक इधर लगा रही है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो बीच में ड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ ड्रॉ की एक यहाँ ड्रॉ की। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि एक इंटरसेक्ट की तो उसकी दो डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। ओके, जिस वजह से वो इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए जो हम उनका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनता है वो रिजल्टेंट के अलॉन्ग बनता है। तो when you say about it in English, it's like that. The properties of electric lines of force. So electric lines of force are imaginary, but the electric field is real. Electric lines of force are drawn for resultant electric field and not for all. Okay. So next is tangent at any point on electric line of force indicates the direction of field at that point. See, an electric lines of force is drawn, and we want to know the electric field at a point in that electric line of force. Means line is this much long, and but there is a point where we want to know what's the electric field actually present there. So for that we will draw a tangent. So till now we have got through the 3 points. What are they? That electric lines of force are imaginary but electric field is real. The second point is like that the electric field is drawn along the resultant, and the third point is that the electric field of line indicates the direction of field at that point, means tangent to the electric line of force, so the point. So see, you might be wondering that why I'm saying that. Yeah, obviously I have a copy with me, and yes, I'm also learning through the process because obviously learning and understanding things goes on through well. Okay. So two electric lines of force never intersect each other. If they intersect, then there will be two directions of electric field at intersection, which is not possible. So देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम लोग दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, और दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस वजह से वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसलिए जब हम लोग फाइनल बनाते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, उसके बीच में बनाते हैं, रिजल्टेंट बनाते हैं। किसी पॉइंट पता करना तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं इमेजिनरी होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनल एट नेगेटिव चार्ज और एट इन्फिनिट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा किसी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ा है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेंगी वो हमारे कैसे बनेंगी, वो हमारी बनेंगी उससे अवे,
ओके। और जो हमारे टर्मिनेट होंगी तो वो क्या होंगे, हमारे निगेटिव चार्ज या फिर हमारे इन्फिनिट पे टर्मिनेट होंगी। ठीक है, तो ये ऐसे ही तो हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर बनता है मीन्स लाइक सम द क्रैब या स्पाइडर ऐसा बनता है। ओके, so when you move forward, so dominate either at the infinite or the negative charge. The electric lines of force never in a closed loop. See, electric lines of electricity force never in closed loop means जो electric lines of force जब हम लोग ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा या इनफिनिट पे एंड हो सकता है, पर कभी भी क्लोज लूप में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज है उसी से स्टार्ट हुआ उसी पे जाके एंड होगा, क्लोज लूप में नहीं होगा। एंड दिस इज बिकॉज सी दिस इज द exertion reason, pure exertion reason question, and it's like that the electric lines of force are never present in closed loop. Reason is the conservation of charge. Conservation means conservation of the electric field, because electric field is a conservative quantity. Electric field is a conservative quantity. So how this conservative quantity and this closed loop are related actually? So see, let's just think about a closed loop. When you calculate the work done in it, it's not equal to 0. Yeah, it's not equal to 0 because work done is equals to F as cos theta. And when we do the cos right, so the cos theta is 0. So obviously becomes 1. So W is equals to Fs and it's not equal to 0. And when it is not equal to 0, it will always saying that it's non-conservative quantity because if it's in a closed loop. But electric field is a conservative quantity, and that's the reason actually why we can't represent that electric field in a closed loop. So okay, till now we have gone through 6 rules. I hope you remember it well. Let's recall it so that we can move forward to means there are more rules, and that means I have 10 rules with me. No, I have 12 rules with me. So we'll discuss that. Means half through we have reached the point. So yes, so first point was that the electric lines are imaginary but the electric field is real. If you want to know about electric field at any point, so we will try and get tangent on it. And when we talk about that, where should we draw the electric field of I? So we should always draw it along the resultant, and this will never cross each other. And also it's the rule that they should not be in the closed loop. And one more thing, that they start from the positive charge and end or terminate at the negative charge. Yes, we're going well, we can all do it. So just the thing is that have confidence on yourself, is will thing deals most of the things with you. Be confident. I know once a time period when you're watching this video, but he says you have to maintain the faith on yourself, instruct your subconscious mind to deal with the things. It will help you very much. Assertion: so electric field never in a closed path. Yeah, it's true. Electric field is a conservative quantity. True. So both here and R are true, and R is the correct explanation of A. Okay. Number of electric lines of force related to a charged particle are directly proportional to the magnitude of the charge. Means when you talk about the number of electric lines of force in the diagram, we will see that the electric lines of force, that number of electric lines of force is directly proportional to the magnitude of charge. Means see, there is a question like this: identify the nature charge of A and B. So A से चार्ज बाहर जा रहे हैं, और जब भी किसी से बाहर चार्ज आते हैं तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन जिसके किसके पास आता है वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज या फिर हमारा इन्फिनिट, राइट? सो इट गोज लाइक दैट। सो ऐसा होता है, तो फिर हमारा कहता है जो ए पॉजिटिव जाएगा बी नेगेटिव हो जाएगा। अब बोल रहे हैं रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसे बताएंगे? येस, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स को फोर्स को हमने काउंट किया, उसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मीन्स दैट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 1 बाय इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स 2 इज इक्वल्स टू द magnitude of charge 1 magnitude of charge 2. Yeah, it goes like that. Consider it as a formula or what, but this is an important point in the electric lines of force. See, you know we are dealing with electric lines of first to deal with the Gauss law afterwards. So yes, patience. Closeness of electric lines of force represents the strength of field. So when we see that the electric lines of force are very close to each other, means the strength is high there. And when they are far away, yes, you are very correct, they have a weak electric field around them. You're very smart, I say now. You're very smart. Uniform electric field. If both direction and magnitude of electric field are same at each point, then field will be uniform. It says that, hear me again, if both direction and magnitude of electric field are same at each point, then field will be uniform. See, when we talk about this, consider there are many kind of parallel lines. So obviously the direction and magnitude of them, means the distance between them is same. Means it's not like they're crowded up in place or very far away and like that. It's the same everywhere.
ठीक है। तो हमारा वहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब कि फील्ड कैसी हमारी यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या मिलता है, हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। पर अगर हम ऐसे ऐसे हैं तो फिर हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन उसका डिफरेंट हो जाता है, तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और अगर हम पैरेलल लाइंस को थोड़ा बीच में अलग अलग डिस्टेंस मेंटेन कर दिया तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो जाएगा, भले ही डायरेक्शन सेम हो। तो जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो वो हमारा होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके सिवाय बाकी सब क्या होगा, हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यू आर वेरी करेक्ट। Next, moving to next point. That's the 10th point. See, we have reached it so fast. It's easy. Just keep yourself calm down. Yeah, let's go. Take a deep breath. Yeah, it's fine. I hope you don't mind these activities of mine. Electric lines of force are present inside the conducting body. Electric lines of force are absent inside the conducting body. See, when we're talking about insulated body or insulated conducting body, the electric means there is no electric field inside a conducting body. There is no electric field, so that's why electric lines of force are also absent on it. So metal at equipotential, okay, just find the form of force. Direction of electric lines of force are perpendicular to isolated conducting surface. And we say about the direction of electric lines of force perpendicular to isolated conducting. सो व्हेन वी टॉक, देखो हमने अंदर की बात की तो अंदर हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारे एब्सेंट होगी। अगर हम बाहर की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्योंकि हमारे परपेंडिकुलर होगी आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस के, मतलब कि कंडक्टिंग सरफेस है उसकी जो परपेंडिकुलर जो हमारी लाइन्स होगी वो हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी। बिकॉज कंडक्टिंग सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि जो हमारी कंडक्टिंग सरफेस होगी वो हमारी क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है तो हमारी कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है। यस, वेरी गुड। Which of the following electric lines of force is possible for the conducting sphere? इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है जो पॉसिबल होगी। देखो अगर कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो अंदर से पास नहीं करनी चाहिए, उसकी ऐसे होके जाएगी तब भी अंदर से मतलब साइड से जाओगे जाएगी तो ऐसा तो होता नहीं है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। और अगर नहीं दिखा रही अंदर, ओके इट्स गुड, बट 90 डिग्री पे होनी चाहिए थी। और फोर्थ है हमारा ऐसे, मैं आपको स्ट्रक्चर तो नहीं दिखा सकती पर येस, इमेजिन अ स्फीयर, वन लाइन इज पासिंग डायरेक्टली थ्रू इट, वन इज some circling and one is not inside and one is perpendicular. So one with perpendicular plus it is not passing from the inside is the correct, because electric lines of force is absent inside the conducting body and it's perpendicular to the equipotential surface that is present with the insulated conducting surface. I hope you understand it. If you don't understand anything, you can ask me. I will make a shot of it and you will definitely get your answer very well. I'm saying to you because I have learned the things well from my level, but still I will have to. It's alright, just like I know I'm very small. I'm really a kid now. I'm just studying all this kind of things. Means kid means not like style, but yeah, this is the initial days of my class. In charge-free region, ELF are continuous and in charge-containing region, ELF are discontinuous. See, when it's about the ELF means electric lines of force, electric lines of force जो होते हैं हमारे continuous होते हैं जब वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। पर अगर वहाँ पे चार्ज प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा, तो वहाँ पे ये होगा कि हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिसकंटिन्यूस हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो हमारे डिसकंटिन्यूस नहीं हुए तो कैसे पास कर पाएंगे उससे थ्रू, राइट। या okay, so finally our rate is over and we have reached the next topic, electric flux, after which we will deal with Gauss law. Okay, fine. So I hope you have learned about the electric lines of force, that they are perpendicular, we draw the tangents, it is absent inside the conducting body, and when we talk about the insulated conducting body outwards, we see that it's perpendicular to the equipotential surface, and they are in the charge free region they are continuous, but in charge present region they are discontinuous. And uniform electric field are there, closeness of electric field means there's more strength, and number of electric lines of force are directly proportional to magnitude of charge. So I hope you all have learned and got all these things in your mind. If you say, I will read for you once so that you will get all the points along with it. Just you have to say to me, and yes, I will do it, because I know it's not a two-way communication just right now. Okay, then I will deal with it. So, electric lines of force
के लिए जो स्टेटमेंट्स है मैं अब वो पढ़ने जा रही हूँ और आपको बताती हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ड्रॉन फॉर, मैं ये सब समझा चुकी हूँ, इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग द फाइनल लाइन सो दैट इट वुड हेल्प इन द एग्जाम्स. ओके. Electric lines of force are imaginary but electric field is real. Electric lines of force are drawn for resultant electric field. The tangent, and not for all, tangent at a point on electric lines of force indicates direction of field at that point. Fourth, two electric line of force never intersect each other. If they intersect, then there will be two directions of electric field at intersection point, which is not possible. Fifth, electric lines of force are originated from positive charge and terminated at the negative charge or at infinite. Electric lines of force of electrostatic never be in closed loop because electric field is conservative quantity. The number of electric lines of force related to a charged particle are directly proportional to the magnitude of charge. Closeness of electric lines of force represents the strength of field in both directions. If both direction magnitude are of electric field are same at each point, then their field will be uniform. Electric lines of force are present inside the conducting body. Direction of electric lines of force perpendicular to the isolated conducting surface because conducting surface is equipotential surface. In charge-free region, ELF are continuous and in charge-containing region, ELF are discontinuous. Now moving to electric flux. Okay, right. So electric flux, surface area in. अब देखो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने तो जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ने तो जा रहे हैं, जिसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो पहले उसके बारे में सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लेते हैं. तो सरफेस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो देखो सरफेस एरिया के लिए बस ये याद रखना है कि सरफेस एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं. जैसे कि सरफेस एरिया की बात करते हैं, देखो पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, हमने कोई रिंग रखा, तो अगर उससे पूरी तरह से पास करते तो सरफेस एरिया हमारा सबसे ज़्यादा होगा. पर अगर हमने ऐसे रखा तो पानी बिल्कुल पास नहीं करेगा, जीरो होगा. मतलब कि सरफेस एरिया का अगर हम पता कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में रखना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं, मतलब सरफेस एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. ओके, तो सरफेस एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. में कोई सरफेस दी हुई है तो उसके परपेंडिकुलर रखने पे उसका मैक्सिमम सरफेस एरिया आएगा. ठीक है. सो या दिस पॉइंट इज clear, I guess. Crystal clear? If you're any doubt, you can ask in the comments, obviously. Electric flux, the quantity which is proportional. And if you comment on any video, it would reach me, be related with anything. Electric flux, the quantity which is proportional to the number of electric lines of force passing through a given area is known as electric flux. So see, electric flux एक्चुअली होता क्या है. देखो हमने इतनी सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाई और उसके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स उस ऑब्जेक्ट से पास करेंगी दैट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. तो क्वांटिटी जो कि प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, उसी को क्या कहेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे. ठीक है. उसको हम लोग जब देखते हैं तो ये हमारा ई हो जाएगा थीटा, ई कॉस थीटा, इसके हमने कंपोनेंट्स किए तो डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डी एस. तो ये हो जाएगा हमारा फ्लक्स, और फ्लक्स हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है. ई मतलब कि ई कॉस थीटा और इंटू हो जाएगा हमारे पासिंग थ्रू गिवन एरिया, तो डी एस, तो ई डी एस कॉस थीटा है ना. देखो एस हमारा है क्या यहाँ पे, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया को हमने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, एरिया से. तो द क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डी एस. उसके बाद हमारा हो जाएगा कि ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा. तो हमारा जो डी फाई इज इक्वल टू देखो हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. ओके. इसके बाद हम देखते हैं फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सरफेस. तो किसी कंप्लीट सरफेस की बात करें तो उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो फिर डी फाई इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन करेंगे ई डी एस का, ठीक है। क्योंकि पहले ई डी एस ही तो आया, क्योंकि हमारा कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करें और हमारा सरफेस एरिया की बात करें, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखा क्या है हमने, ये क्वांटिटी विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया इज नोन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो डी फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर आया था, तो हमारा वही चीज़ है कि ऐसे करेंगे। तो ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वेरी करेक्ट। फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सरफेस, कितना फ्लक्स पास करेगा तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डी एस वेक्टर, राइट। सो या इट्स लाइक दैट। तो अगर हमारा ई वेक्टर जो है वो हमारा यूनिफॉर्म हो गया तो क्या होगा, तो ई वेक्टर यूनिफॉर्म हो गया तो और क्या, फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर हो जाएगा, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट का जो होता है उसके प्रमाण से स्केलर आता है, इस वजह से क्यू इज फाइव इज इक्वल टू एस कॉस ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ऐसा ही है, तो हमें ये याद रखना है कि डी फाइव इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड व्हेन द ई इज यूनिफॉर्म, सी लिसन, व्हेन द ई इज uniform, so then es cos theta is applicable for the phi means flux value. Now moving to special points. So obviously this, the electric flux is a scalar quantity. Unit of electric flux is es cos theta, so Newton per coulomb meter square and volt meter. These are the two units of it. Phi is equal to Nm square. So the dimensional quantity is m1 L cube t power minus 3 a minus 1. And if surface is placed in a non-uniform electric, sorry guys, if surface is, I don't have coffee with me, that's the reason actually. If surface is placed in non-uniform electric field, then flux passing through it, अगर सरफेस प्लेस किया जाए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फिर हमारा क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस वेक्टर। और अगर हमारा यूनिफॉर्म होता है तो हमने अभी पढ़ा था, बताओ, बता सकते हो, यस, ई वेक्टर डॉट ई एस वेक्टर विच इज ऑल्सो कहते हैं ई एस कॉस थीटा, किसके लिए, फाइव के लिए। फाइव क्या होता है, फ्लक्स होता है। अगर हमारा वो यूनिफॉर्म रीजन में तो हम ई एस कॉस थीटा लगा सकते हैं, वो यूनिफॉर्म रीजन में नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म रीजन में, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, ई और डी एस का। वेरी करेक्ट, गुड। अगर हमारा सरफेस एरिया दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, फाइंड फ्लक्स, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। एंड सरफेस इज दिस मच, सो हमें पता है कि ये जो सरफेस एरिया आया होगा परपेंडिकुलर ही आया होगा, तो हम इसको आई खाप रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। यस, इफ सरफेस ऑफ 4 meters square is placed in uniform electric field 5 volts per meter, if plane surface makes an angle 30 degrees with the electric field, then find out the. So obviously it's the case of ES cos theta, but yeah, it's a very tricky question because say the plane of surface makes an angle 30 degrees with the electric field. So this is not theta, which we always look for. This is not theta. Theta is equal to 690 minus 30 and it's 60 degrees. Okay, so phi is equal to E vector dot ES vector to ES cos theta. Finally, we have over with the electric flux. And what's the electric flux? What you learned at the कितनी लाइंस पास कर रही हैं किसी एरिया से, कितनी लाइंस पास कर रही हैं किसी एरिया से, दैट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होता है। कितनी लाइंस पास कर रही हैं, मतलब कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, और कितनी एरिया से, सरफेस एरिया की बात करते हैं एस से, तो ई एस, तो डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई एस ई डी एस। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म में रखा हो तो क्या होगा, तो वही होगा जो पहले हो रहा था, तो हो जाएगा हमारा ई एस कॉस थीटा। क्या चीज़ ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, फाई इज फ्लक्स। Now talking about the Gauss theorem. So Gauss theorem की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, according to gases net electric flux passing through a closed surface is equal to the ratio of the net charges enclosed by that surface to either. It's complex. So yeah, we are discussing about the Gauss theorem or Gauss law which is called. तो हमने ये देखा है Gauss में कि net electric flux passing through a closed surface 3D surface is equal to the ratio of the net charge enclosed by that surface
टू ई नॉट। अगर बात करते हैं कि गॉस में क्या कहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा एक क्लोज सरफेस है वो इक्वल होगा, किसकी इक्वल होगा, तो रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस टू ई नॉट। मतलब कि हमारा अगर हम बात करते हैं तो वो किसकी इक्वल होगा कि वो हमारा जो बॉडी इनक्लोज है उस मतलब चार्ज के अंदर जो बॉडी के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है बाई एप्सिलॉन नॉट हमें दे देगा क्या, फाई। और फाई हमारा क्या होता है, गॉस के तो फ्लक्स ही होता है, तो फिर वही चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू a enclosed surface is equals to the ratio of net charge enclosed by surface to E naught। तो सरफेस दिए हैं तो इसमें भी चार्ज को ऐड करके बाय एप्सिलॉन नोट कर देंगे, उसका स्पेशल पॉइंट लेंगे। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन इनक्लोज चार्ज, इट डजंट डिपेंड्स ऑन आउटर चार्ज। तो फ्लक्स हमेशा जो अंदर चार्ज प्रेजेंट हो उस पर डिपेंड करते हैं, ना कि बाहर। समझ में आया? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड्स ओनली ऑन इनक्लोज चार्ज। Flux passing through closed surface depends only on enclosed charge, doesn't depend on outer charge। ओके, तो ये हमें पता चलता है भाई गॉस लॉ से। अब आगे देखते हैं। फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ इनक्लोज चार्ज। जो फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस का वो नहीं डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द इनक्लोज चार्ज, पोजीशन इनक्लोज चार्ज। वो हमारा फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, कहीं भी रख दूँ उसे। ओके, तो ये चीज़ हो गई। इट डज नॉट डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ इनक्लोज चार्ज। ये भी हम लोग उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ दैट सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हाय कितनी सुंदर राइटिंग है, हाय मतलब बीच में मतलब लिखते लिखते जब अच्छी हैंड राइटिंग लिख देते ना भाई लगता है भाई ऐसा क्यों नहीं लिखते हमने पूरी कॉपी में। कोई बात नहीं, इंसान है, होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, नॉर्मल है, ओके है, ठीक है, छोड़ दो ना, पढ़ो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ दैट सरफेस। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी सरफेस से निकालेंगे तो शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा, डजंट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। वो सीधा सीधा आप फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन बोथ इनक्लोज एंड आउटर चार्ज एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर फील्ड पोजीशन। अगर हम देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कीजिए तो वो हमारे क्या कहते हैं एकदम सिर्फ अंदर के चार्ज पे डिपेंड करता था, बाहर के चार्ज पे नहीं करता। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी क्लोज सर्किट वो हमारे अंदर की और बाहर दोनों के चार्ज पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स बोथ अंदर एंड बाहर का चार्ज एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है कि अगर पास होगा तो अलग होगा फ्लक्स और सॉरी फील्ड, और अगर दूर होगा तो अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी आता है नेगेटिव हो जाता है, जो भी जाता है बड़ा पॉजिटिव रहता है। ये पता है ना, इंसान जब मर जाए इतने पॉजिटिव रहते हैं, अरे भाई मज़ा आएगा मर के, राइट? सी सोसाइटी वी थॉट्स आर नॉट गुड बट एक्चुअली वी ऑल हैव देम, मी टू एंड वेरी मच, बट लीव इट। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा कैसे होता है, नेगेटिव होता है, आउटगोइंग फ्लक्स हमारा पॉजिटिव होता है। Electric field by acting and out charge. Also, if electric field change when positive and out charge मीन्स का पोजीशन चेंज करेंगे Q1 और बाहर वाले चार्ज के दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट होगा। पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो पोजीशन से कोई लेना देना ही नहीं है। और फ्लक्स की बात करें तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज पे डिपेंड करता है, बाहर पे तो डिपेंड भी नहीं करता है। ये तो बाहर भी डिपेंड करता है, अंदर भी डिपेंड करता है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सी चार्ज भी पोजिशन भी। और इनकमिंग नेगेटिव होती है, आउटगोइंग पॉजिटिव होती है। तो हमारे जो पॉजिटिव है टोटल मतलब कि 5 टोटल क्या हो जाएगा, 5 इन प्लस 5 आउट। ठीक है, तो 5 टोटल इज इक्वल्स टू क्यू ई एन बाई की ई नॉट। सो दिस इज द गॉस लॉ, वी हैव क्रैक्ड इट, वी हैव इज 4 दिया यार,
फिर से समझ में आया? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ा कि वो लाइन्स ऑफ फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में एक बॉडी रख दे तो उस बॉडी से जितना पास करेंगे चार्जेस उन्हें कहेंगे हम लोग के फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा ई एस कॉस थीटा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में और भी किसी एंगल पर अगर प्रेजेंट है तो ई एस कॉस थीटा। और हाँ ई एस कॉस थीटा तभी लगे जब यूनिफॉर्म होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमारे साथ क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे ई डी एस करेंगे। और उसके बाद हम लोग गॉस लॉ को देखते हैं। तो गॉस लॉ में हमारा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका क्या होगा, तो वो देखो सेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करता, बाहर के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ अंदर पे के चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है पास थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेट चार्ज टू द सरफेस एप्सिलॉन नॉट। तो कितना उस बॉडी में टोटल चार्ज है बाई एप्सिलॉन नॉट में क्या देता है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ देता है। इसमें टोटल 5 पॉइंट है, बताओ लाइन से। तो इसमें ये होगा कि फ्लक्स पासिंग थ्रू डिपेंड्स ओनली ऑन क्लोज चार्ज, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनक्लोज चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द इनक्लोज चार्ज। ठीक है, क्या होता है, डिपेंड्स ओनली ऑन क्लोज चार्ज and doesn't depend on position of enclosed charge. That is, just passing through closed surface doesn't depend on size, shape and size, or depends on both enclosed and outer size. Also depends on the position. इलेक्ट्रिक फील्ड है क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन द बोथ इनक्लोज एंड आउटर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे डिपेंड करता है और फ्लक्स हमारे बाहर जाने अंदर जाने के लिए नेगेटिव और बाहर जाने के लिए पॉजिटिव। सो दिस इज ऑल आई हैव बीन टॉट टिल नाउ। आई होप इट